أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله۔ یا باری تعالیٰ ہم آج سب لوگ اکٹھے ہو کے اپنا یہ مقدمہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ عمران خان صاحب جو کہ ناحق قید میں ہیں، یا اللہ ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ وہ باہر آ کے اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا۔ آج ہم یہاں پہ آپ کے حکم سے یا الہ العالمین اپنے مشن نور کی کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے اور فلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنا مقدمہ آپ کی بارگاہ علی جناب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمانے علی شان ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لمحہ لمحہ کھٹکھٹائے، لیکن کہیں سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اے پاک پروردگار، آج ہم آپ کو تمام تر طاقتوں کا منبع و ماوا سمجھ کر اپنا مقدمہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جس بھی تاریخ کے اندر ظالم حکمران آئے تو اللہ والوں نے اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لیا۔ یوم عاشور میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ بیٹا اذان دو۔ حضرت علی اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو یزیدی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لرزہ اس قدر طاری ہوا کہ وہ فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ آج پاکستان کے اندر وہی یزیدی فوجیں بیٹھی ہیں، وہی یزید بیٹھے ہیں، وہی حکمران بیٹھے ہیں جن کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد اس اسلامی ریاست کے اندر ہمیں دبانا ہے۔ ہم نے اپنا رجوع اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ مشن نور یہ صرف ایک جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کو، میں نے اور میرے دیگر ساتھیوں نے دیکھا کہ ہم نے بہت کوشش کر کچھ بھی نہیں بن پا رہا۔ جب ہم کہیں نکلتے ہیں ہم پہ ظلم اور فسطائیت کی انتہا کی جاتی ہے، ہم پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ہماری فیملیز تک کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو دوبارہ سے پکارا جائے۔ دیکھیں یہ اذان استغاثہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا جو ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے اوپر۔ دیکھیں سب سے بڑا تو مسائل ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک ناجائز حکومت رائج ہے۔ عوام جو ہے وہ اب ایک پیج پر آ چکی ہے، تو یہ عوام اپنی حق کا واپس لینے کا اظہار کرنے کے لیے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 ستمبر ہے اور آج کے دن مشن نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ چند لوگ تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں، ہم لوگ مل کے ایک اجتماعی دعا کریں گے اور ہم لوگوں نے آ کر اذان دینی ہے۔ تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلازے کے اوپر ناظرین کرام کچھ لوگ ہیں اور یہاں پر ناظرین کرام انہوں نے اذان کے لیے صفیں باندھی ہوئی ہیں، چپلیں اتار کے یہ لوگ اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے اور یہ آپ کے سامنے ہم ناظر ہیں جناب اعلیٰ۔ آگے ذرا چلے جائیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
या बारी ताला हम अब आज सब लोग इकट्ठे होके अपना ये मुकदमा तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं। या अल्लाह तू हमारी आरजू हमारी तमन्ना या अल्लाह तू पूरी फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को सलामती अता फरमा। या अल्लाह इमरान खान साहब जो कि नाहक कैद में हैं, या अल्लाह उनको आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह वो बाहर आके इस मुल्क को दोबारा से तरक्की की राह पर गामज़न करें। या अल्लाह अपने महबूब का सदका या अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों से हमें निजात दिला। या अल्लाह जो ये फ़िरौन की तरह हुक्मरानी हमारे ऊपर कर रहे हैं, या अल्लाह इन फ़िरौनों से हमें निजात दिला। या अल्लाह और हमारे जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब की वजह से या अल्लाह जो लोग मुतासिर हुए हैं तो उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनको सहारा अता फरमा। या अल्लाह और उनकी हर तरह से उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे अल्लाह पाक जी, पाक परवरदिगार जी, प्यारे अल्लाह पाक जी, या अरहमर राहिमीना या अहकमल हाकिमीना या रब्बी या रब्बुल इज़्ज़त। प्यारे अल्लाह, आज हम यहाँ पे आपके हुक्म से या इलाहुल आलमीन अपने मिशन नूर की कामयाबी के लिए और कामरानी के लिए और फलाह के लिए हाजिर हुए हैं। या अल्लाह, अल्लाह पाक, हम अपना मुकदमा आपकी बारगाह आली जनाब में रखना चाहते हैं। फरमाने वाली शान है कि जुल्म सहना भी जुल्म है, जुल्म सहना भी जुल्म है। या अल्लाह, दहाइयों से हम जुल्म सह कर हमारी कमरें टूट चुकी हैं, हमारी कमरें टूट चुकी हैं। हम आजिज आ चुके हैं इन जालिम जाबिर हुक्मरानों से। या अल्लाह, या रहमान राहिमीना, हमने हर हरबा इस्तेमाल किया, हमने हर हरबा इस्तेमाल किया, हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, लम्हा लम्हा खटखटाए, लेकिन कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिला, कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारे पीरो मुर्शिद को, हमारे लीडर को, जिनको हमने भारी अक्सरियत देकर अपना वजीर आज़म चुना, अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, उन पर मुख्तलिफ किस्म के भोंडे और मुज़हिक्का खेज इन्होंने मुकदमात डालकर कैद में डाला हुआ है, डेथ सेल में डाला हुआ है। उनकी रिहाई के लिए हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। हमने अक़वाम मुत्तहिदा तक रसाई हासिल की, लेकिन बेसूद। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, आज हम आपको तमाम तर ताकतों का मंबा मावा समझकर अपना मुकदमा तेरी बारगाह में पेश करते हैं, तेरी बारगाह आली जनाब में पेश करते हैं। या अल्लाह, अपने तमाम अंबिया कराम की बारगाह आली जनाब में पेश करते हैं। अपने प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की प्यारी रहीम करीम ज़ाते मुबारका के कदमों में रखते हैं, मुकद्दस और तैयब और ताहिर कदमों में रखते हैं। हम अहले बैत अतहार, खास तौर पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला वालों के मुकद्दस और तैयब और ताहिर कदमों में रखते हैं। या अरहमर राहिमीना, या अकमल हाकिमीना, हमारे लीडर को रिहाई अता फरमाइए, हमारे लीडर को रिहाई अता फरमाइए। या अल्लाह, अपनी बारगाह से हमारे लिए कोई ऐसा वसीला बना दीजिए कि हमें दुनिया में किसी का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, हमें किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े, हमें किसी के तरले ना करने पड़े। अल्लाह, हमें किसी भी इस्लामी मुल्क की मदद की जरूरत ना पड़े। या अल्लाह, सब ने आंखें फेर ली, सऊदीया ने आंखें फेर ली, यूएई ने, कतर ने, ईरान, इराक, जितने भी इस्लामी ममालिक है, किसी ने ना जाना कि पाकिस्तान में मुसलमानों पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर किस कदर जुल्म हो रहा है, किस कदर जुल्म हो रहा है। एक बाप अपने औलादों को दे रहा है, माँ अपने बच्चों को खो रही है, बहनें अपने भाइयों को खो रहे हैं, बच्चे जो है यतीम किए जा रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह पाक परवरदिगार, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे मुर्शिद ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की है। हमारे मुर्शिद ने हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्हीं की इस बात को लेकर आज हम यही कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, या अल्लाह, इसी नाजायज हुकूमत की जो है वो सौगातें हैं कि
बस्तियों की बस्तियां तबाह हो रही हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ चुकी हैं, लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। अल्लाह तेरा आसरा है, अल्लाह सिर्फ तेरा सहारा है। या अल्लाह हम जो जिंदा हैं हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपने सलाब में गिरे हुए बहन भाइयों की हत्तल वसा जितनी भी हमसे हो सके हम उनकी मदद कर पाएं। और ए अल्लाह अपने मुर्शिद के लिए हम तेरी बारगाह आली जनाब के हुजूर हम हाजिर हैं, इंतहाई आजिज़ी से, इंतहाई मस्कीनी से, इंतहाई यकीन से, इंतहाई एतकाद से, इंतहाई एतमाद से, इंतहाई एतमाद से। अल्लाह अल्लाह हमारे एतमाद को, अल्लाह हमारे एतमाद को हम कभी कह ही नहीं सकते, ये बेअदबी और गुस्ताखी नहीं कर सकते कि हम कहें कि हमारे एतमाद को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि जिस बारगाह आली जनाब में हमारी हाजिरी हो चुकी है वहाँ एतमादों को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि एतमादों को बुलंद किया जाता है, एतमादों को बुलंद किया जाता है, ठोस किया जाता है, मजबूत किया जाता है और बता दिया जाता है कि मेरे पे एतमाद किया मेरे बंदो, मेरे पे एतमाद किया और वास्ता दे दिया मेरे महबूब का, वास्ता दे दिया मेरे महबूब के महबूबों का, तो जाओ 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 जाओ, तुम्हें निजात दी, तुम्हें निजात दी, तुम्हें निजात दी। अल्लाह हमें निजात चाहिए इन जालिमों से, अल्लाह हमें निजात चाहिए इन जाबिरों से, अल्लाह हमें निजात चाहिए, अल्लाह हमें निजात चाहिए। आमीन वसुम आमीन वसद आमीन वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। है कि जब भी किसी मुल्क पे, किसी शहर पे, किसी मकाम पे पहले दौर में या इस दौर में भी आफत आती थी तो लोग अल्लाह के हजूर पेश होते थे, अजानें देते थे ताकि जो आफत है, जो बुराई है, जो भी मुश्किल परेशानी है वो दूर हो सके। इस वक्त हमारे मुल्क पे, तमाम उम्मत मुसलमा पे जो परेशानी, जो आफत ज़्यादा ये हुक्मरान हमारे ऊपर मसल्लत हैं, हम इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए और जो हमारा मुर्शद, जो मुस्लिम उम्मा का मुर्शद इमरान खान, जो नाहक जेल में इन्होंने कैद किया हुआ है, उसकी रहाई के लिए हम लोगों ने ये अजान दी। हम लोग ही नहीं, आप जरा बाहर निकल कर देखें, 25 करोड़ अवाम अपने घर की छतों पे, प्लाजों पे, जो भी पॉसिबल है उधर अजाने दे रहे हैं, इसलिए कि मुर्शद जेल से बाहर आए और ये जो हमारे ऊपर इन्होंने आफत ज्यादा लोग मुसल्लत किए हुए हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके। इंशाल्लाह ये जो मिशन नूर का मिशन था ये जारी हो चुका है और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं, 25 करोड़ अवाम की सांसों में सांसें हैं, जब तक हमारा मुर्शद, इस मुल्क का लीडर, मुसलमानों का लीडर बाहर नहीं आता, तब तक ये जानों का सिलसिला भी जारी रहेगा और दुआएं खैर भी होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत से लोग खड़े हैं, प्यारी सी एक बच्ची भी खड़ी है, वालदा जो है उसको लेकर आई हुई है। मोहतरम ये बताइएगा कि ये अजान देने का आपका मकसद क्या है? आज आपने बुलाया कि जी हम लोग के अजान देने लगे, सब लोग इकट्ठे होकर मोहल्ले के लोग, तो क्या मकसद क्या है आपका? प्लीज सर, प्लीज बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये अज़ान इस्तिग़ासा है, ये अल्लाह ताला से रुजू करना जो हमारे मसाइल है इस मुल्क के ऊपर। देखें, सबसे बड़ा तो मसाइल है कि इस मुल्क के ऊपर एक नाजायज़ हुकूमत राइज है और उसकी वजह से इतने मसाइल हैं, क्योंकि एक और मसला है कि सैलाब आया है और सैलाब की जो तकलीफ़ है आवाम को और गरीब लोगों को, उसके लिए भी हमने दुआ की कि उससे भी अल्लाह ताला हमें रिलीफ दे, हमारी मदद करे, हमें वो तौफीक दे कि हम लोगों की जाके मदद कर सकें। लेकिन इस डिज़ास्टर के ऊपर एक और आप चीज़ देखें कि एक और जो सबसे बड़ा अज़ाब है वो नाजायज़ हुकूमत का है और इस नाजायज़ हुकूमत के होते हुए ये सैलाब आया है, तो इसका मतलब कि डबल इम्तहान हो रहा है इस मुल्क का और इस मुल्क की गरीब आवाम का। तो हमारा यही है कि हम इंसाफ मांगते हैं, हम अल्लाह ताला से रुजू कर रहे हैं अज़ान दे के कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे जो नाजायज़ लोग जेलों में हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और आज वो कासिम खोकर हैं गुजरावाला में, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं जिनका इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं गुजरावाला जेल में। और उसके अलावा हमारे लीडर खान साहब जेल में हैं, बदतरीन किस्म के हालात में उनको रखा हुआ है, उनकी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, उनको 18 घंटे सेल में बंद करके रखते हैं और एक 9/10 की डेथ सेल में उनको रखा हुआ है। आलूदा पानी दिया जाता है उनको जो खानसामा उनका हर 3 दिन 4 दिन बाद चेंज करते हैं, ताकि वो उनको अनट्रेंड बंदे से वो खाना मिलता है, उनसे उनके गार्ड भी नहीं बात कर सकते। उनकी एहलिया को भी जो सेम जेल में नहीं मिलने देते, और उनकी एहलिया को इस तरह के सेल में रखा हुआ है जहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी पाकीज़गी नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है वज़ू करने के लिए।
تو اس طرح کی جو فرونیت ہے اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں سڑکوں پہ، ہم ہر طرح کا اپنے دیکھیں ہم ایوانوں سے بھی باہر نکل رہے ہیں، اور اب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ہر وقت دعا تو کرتے ہیں، لیکن اب آپ ایک دیکھیں کہ آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور ایک یہ بڑا ایونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ میاں ہماری یہ آواز سنیں گے اور جلد ہماری اس ناجائز حکومت سے نجات حاصل ہوگی ہمیں۔ ناظرین کرام، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ میم یہ بتائیے گا کہ آج کیونکہ یہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، آخر مقصد کیا ہے اس کا، یہ جو اذانیں آپ دے رہی ہیں پلیز میم؟ دیکھیں جی یہ جو عوام ہے ہمارے ملک پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب ایک پیج پر آ چکی ہے۔ یہ عوام ایک ہی لیڈر کو واپس دیکھنا چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی کے ووٹ جن کو وہ ووٹ دیتی ہیں وہ ان کو چاہتی ہے کہ وہ نظر آئیں ایوانوں میں اور وہ فیصلے کریں۔ تو یہ عوام اپنی حق کا واپس لینے کا اظہار کرنے کے لیے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے اور حربے استعمال کیے، بہت سے طریقے مزاحمت کے ٹرائی کیے، لیکن ہر جگہ ہمیں یہ ظلم اور فسطائیت کی دیوار مل رہی ہے، اور ہمارے لوگوں کو کی حوصلوں کو توڑنے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بچہ آج شہید ہوا ہے میرا دل روتا ہے جب میں اس کی ماں کی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے کہ یہ اس کا وہ بچہ تھا جو غربت کی افلاس کی حالات میں سے وہ بچہ جرنلسٹ بن کے ابھرا تھا، اور اس نے صرف حق سچ بولنے کی اس کو یہ سزا ملی کہ اس کو گجرانوالہ کی پریزن میں ناحق بغیر کسی مقدمے کے ایک ہبڑ دبڑ جلدی سے کیس کر کے اس کو بند کر دیا گیا، اور وہ اس انتظار میں کہ اس کی پیشی لگے گی، اس کی اپیل سنی جائے گی، اس انتظار میں وہ بچہ دل کا ایک 32 سالہ نوجوان دل کے مرض سے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے مر گیا۔ یہ قوم یہ قرض کیسے اتارے گی؟ تو ہم ایک ہی ہمارے پاس بارگاہ رہ گئی ہے جو ہمارے ان گناہوں کو دھو دے، جو ہم نے ناانصافیاں برداشت کر کے کی ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے، اور دوسرا مظلوم کو بھی اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ تم نے ظلم نہیں سہنا، تم نے آواز اٹھانی ہے، تم نے مزاحمت کرنی ہے۔ تو ہم اس لیے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری قوم کو معاف کر دے، اور ہمیں اس عذاب جو مسلط شدہ ہمارے اوپر حکمران ہیں ان سے تلافی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر کافی موجود ہیں، ہم سب چاہیں گے کہ ان سے بات کریں۔ سر مقصد کیا ہے، کیوں اذانیں دے رہے ہیں، کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو اذانیں دینی پڑ رہی ہیں پلیز؟ ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں، جس بھی تاریخ کے اندر ظالم حکمران آئے تو اللہ والوں نے اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لیا۔ میں انسانی تاریخ سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوم عاشور میں اذان جب نماز فجر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ بیٹا اذان دو۔ حضرت علی اکبر جب فجر کی اذان دی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو یزیدی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لرزہ اس قدر طاری ہوا کہ وہ فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ایک انسانی طریق سے جب اللہ کی صدا کو پکارا گیا۔ آج پاکستان کے اندر وہی یزیدی فوجیں بیٹھی ہیں، وہی یزید بیٹھے ہیں، وہی حکمران بیٹھے ہیں جن کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد اس اسلامی ریاست کے اندر ہمیں دبانا ہے۔ لیکن آج تمام تر فسادیت کے خلاف ہم نے اپنا رجوع اللہ کے حضور پیش کیا ہے، اللہ کو پکارا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی عدالت سے بڑا انصاف ملے گا اللہ والوں کو، عمران خان کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو۔ یہ اذانوں تک بات آ گئی ہے، وجہ کیا ہے پلیز ذرا بتائیے گا؟ دیکھیں جہاں تک اذانوں تک بات آنے کی بات ہے نا، تو ہمارے بیسیکلی کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ جب کبھی آپ پہ بہت زیادہ پریشانی آ جائے، اور خاص کر جب پریشانی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہوئی نظر آئے، تو یہ مطلب کہہ لیں کہ اسلامی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو زور زور سے آوازیں دیں، اللہ کو مانیں کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، جب ہم پہ اتنی زیادہ یہ پریشانی آ گئی ہے تو اسے تو ختم کر۔ جس کی میں مثال ایک دیتا ہوں، فرض کریں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو جب بارش فرض کریں ہوتی تھی
तो बारिश कभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी, मतलब चंद घंटों के बाद ही हमारे बुजुर्ग हमें मतलब फरमाते थे कि आप छतों पे चढ़ जाएं और अजानें दें। और हमारा यकीन उस वक्त इतना पुख्ता था कि जैसे ही हम अजानें देना मतलब गाँव में या शहरों में शुरू करते तो यकीन करें कि चंद घंटों के बाद ही बारिश जो थी वो तकरीबन ख़त्म हो जाती थी और अल्लाह ताला अपना बड़ा खास फजल फरमाते थे। आज आपको यकीन है कि अजानें देने के बाद जुल्म देखिए, खत्म हो जाएगा? जहाँ तक यकीन की बात है, यकीन तो इतना ही है जैसे एक इंसान हमें इंसान होने पे है, जितना इस पूरी कायनात के बनने पे है, जितना हमें अल्लाह पे यकीन है। जब अल्लाह का हुक्म है तो हमारा काम है कि हम अपना फ़र्ज अदा करें। बाकी वो हमारे लीडर जो खान साहब है वो भी यही फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी मेरे आपके हम सब के अल्लाह के हाथ में है। बेशक। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है, देर सवेर हो जाती है। अजानें हम देंगे, इन जालिम हुक्मरानों से जान अल्लाह के फजल से हमारी छूट जाएगी। वो दिन दूर नहीं है और अल्लाह के फजल से ना हमारा लीडर घबराया है और ना हम घबराए हैं। अजानें भी देंगे, आज भी दी हैं, कल भी अजानें देंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना भी है, मैंने पढ़ा भी है कि दुनिया की तारीख में इतनी ज़्यादा अजानें कभी भी एक वक्त में पूरी दुनिया में नहीं हुई जो अल्लाह के फजल करम से अजानें होने जा रही हैं। तो बाकी तो मेरे अल्लाह और आपके अल्लाह का काम है ना कि कितनी जल्दी हमें इन से निजात दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाक। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने कि पहले में जब बारिश कहीं ज्यादा हो जाती थी, रुकने का नाम नहीं लेती थी, घरों में आ जाती थी इस वक्त बारिशें, तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आप लोग जो है अजाने दें, और जब हम अजाने देते थे तो उस वक्त ये बारिश खत्म हो जाती थी। तो इस तरह बारिश खत्म हो जाती थी, इस तरह हमें यकीन है कि ये जुल्म की जो फिजा है ये खत्म हो जाएगी, इसलिए हम अजाने दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। मोहतरम, क्यों अजाने देने तक बात आ गई है? आप पे गिला भी है कि आप तो एक सियासी लोग हैं, आप लोगों को अजाने देने की क्या नौबत आ गई है? वजह क्या है इस वक्त अजाने देने की? प्लीज सर। मिशन नूर, ये सिर्फ एक जमात के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। आपने पूछा कि इसकी क्या नौबत आ गई। देखिए, कुछ लोगों की भी आप बात सुन रहे थे, कुछ हमारे एंसेस्टर्स हमारे बड़े थे, जब कभी सैलाब आता था या बारिशें ज़्यादा होती थी या कोई ऐसी बीमारी फैलती थी या कोई ऐसा कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ थी, तो हमें हुक्म था कि अजान दें। मकसद होता है अल्लाह ताला को पुकारना, मकसद होता है अपने ईमान को ताज़ा करना, अल्लाह से दोबारा से लिंक जोड़ना। मिशन नूर इसका नाम है। अजान देने का बेसिक मकसद ये है कि जैसे बैसियत जमात के कारकुन के, मैं पीटीआई का कारकुन भी हूँ, मैंने और मेरे दीगर साथियों ने देखा कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कुछ भी नहीं बन पा रहा। जब हम कहीं निकलते हैं हम पे जुल्म और फुस्तायत की इंतहा की जाती है, हम पे टॉर्चर किया जाता है, हमारी फैमिली तक को परेशान किया जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए फिर एक ही तरीका है, अल्लाह ताला को दोबारा से पुकारा जाए। दोबारा से पुकारा। और देखिए मिशन नूर का मकसद क्या है, ये एक यकजहती का पैगाम भी है कि सारी कौम, मिनहसल कौम, सब लोग इकट्ठे होके सब लोग इकट्ठे होके ठीक है, इस चीज के ऊपर फोकस करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे यूनिटी भी मांग रहा है और अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये रिक्वेस्ट हमें अल्लाह ताला से करनी है कि या मेरे पाक परवरदिगार, हमारी बस हो गई है, सब्र का पैमाना लबरेज होने को है और फुस्तायत खत्म नहीं हो रही। लिहाजा दिस इज द टाइम दैट वी शुड कॉल आवर लॉर्ड टू प्लीज कम एंड हेल्प अस। दिस इज द बेसिक मिशन, जो मिशन नूर है ये है। थैंक यू सो मच जी। आखिर में मैं सिर्फ कुछ चंद लोग यहाँ पर रह गए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। असल में हुआ ये कि जितनी भी मोहल्ले के या वो लोग थे जिन्होंने अजानें देनी थी, उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा करके क्या है कि यार हम एक यकजहत होकर अजानें देंगे। और खवातीनें, औरतें, बच्चे, बूढ़े इस वक्त सब यहाँ पर इकट्ठे होकर अजानें दे रहे हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि लोग कह रहे हैं कि जी हम अजानें इसलिए दे रहे हैं कि जो जुल्म का निजाम है वो खत्म हो जाए। भाईजान, क्या जरूरत है अजानें देने की, प्लीज जरा बताइएगा। सर वो वही चीज़ में आप पहले भी आपको सारे दोस्तों ने यही कुछ दोस्तों ने बात की है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं वो हालात देखें, माएँ महफूज नहीं है, बहनें महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है, गरीब रेडी बान महफूज नहीं है। और हमारे ऊपर इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है जिसको किसी के जज्बात के साथ, किसी के घर के खाने के साथ, किसी के घर के बिजली के बिल के साथ कोई सरोकार किसी किस्म का कोई नहीं है। और ये जुल्म पे जुल्म जो हो रहा है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों पे नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी आज भी आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर भी, एक हमारे जेल में नाहक कैद थे, एक साफी भी थे, उनकी बेचारों की हार्ट अटैक के साथ उनकी डेथ हो गई। अभी कुछ रोज पहले हमारे एक साथी थे जुनेद, उनको 10 साल की सजा हुई, नाजायज नाहक की सजा हुई।
उनकी वालदा को जब पता चला तो वो हार्ट अटैक से, उसी सदमे से वो उनकी डेथ हो गई। हम ये चीज़ चाहते हैं, आज अजान देने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम से, हमें अल्लाह पाक हमारी जान छुड़ा दे। इस 25 करोड़ अवाम को अल्लाह पाक उनकी दुआ नज़दीक होकर सुन लें। हमसे शायद कोई इस तरह की गलतियाँ हो गई हैं कि जो ये निज़ाम और ये जो ज़ालिम हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, अल्लाह पाक हमें इनसे जल्द निजात दिलवा दे और पाकिस्तानी कौम अपने आप को हकीकी लफ्ज़ों में आज़ाद महसूस करे, जिस तरह के कायदे आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। हम खुदा की कसम उस दौर से हम लोग, हमारी कौम, हमारा पाकिस्तान, उस दौर से हम लोग आज़ाद नहीं हुए, हम उस वक्त से गुलामी काट रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर जो आज यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अज़ानें दी हैं, जो हमारा जो आज का ये जो मिशन था, इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार हुआ है और अल्लाह पाक लाजमन नेक बंदों की दुआएं जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहेंगे आखिर में, मुझे बताइएगा जरूरत क्या है अजान देने की, और क्या लगता है कि अजान देने से ये जुल्म का निज़ाम खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है और सारी 25 करोड़ अवाम इस वक्त अजानें दे रही है, रोडों पे है, सड़कों पे है, सैलाब भी आया हुआ है, गुर्बत भी है, लोग बिल नहीं दे सकते, इलाज नहीं करवा सकते। अब अल्लाह की बारगाह ही रह गई है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, हम यहाँ पर आए, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो घरों की छतों पे चढ़कर उन्होंने जो है आज़ानें दी हैं। हुआ ये है कि लोगों ने इकट्ठा किया है लोगों को कि आप लोग हमारे पास आएँ। एक खाने का इंतजाम, नाज़रीन किराम पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है नाज़रीन किराम एक जगह पर जो इकट्ठे होकर बैठे, और इन्होंने जो है नाज़रीन किराम ये काम करना शुरू किया है कि लोग आकर खाना खा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने अजानें दी हैं। जब मैंने पूछा कि अजानें आपने क्यों दी हैं, क्योंकि हम भी इन्वाइटेड थे, हमें बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी आप आए, देखिए कि यहाँ पर लोग कितना तंग आ चुके हैं। खवातीन ने दुआ करवाई, अजानें दी गई और यही बात की कि जिस तरह से हम लोग बारिश ज्यादा आने पर हम लोग अजान देते थे तो अल्लाह ताला उस बारिश को रोक देता था। ये जो मुश्किल अजाब आता था, ज़िलज़िला आता था, उस वक्त अजानें देते थे तो ज़िलज़िला रुक जाता था। इसी तरह ये जो अब निज़ाम है ये हद से ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम अजान देंगे, अल्लाह से पुकार करेंगे ताकि ये निज़ाम जो है वो खत्म हो सके। तो आपके सामने तमाम चीजें रखी। अब हम आपको गलियों और बाजारों में लेके जाएंगे कि क्या सिर्फ छतों की हद तक ये महसूस हो चुका है या फिर गलियों और बाजारों में भी अजानें आ रही है। तो हम अब गलियों बाजारों में चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या मनाजिर है। मिशन नूर 20 सितंबर के इस वक्त क्या अजानें हो रही है, नहीं हो रही है, तो बाहर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।